evening, one and all. This is Divya Basin hosting Let's Talk. Every Tuesday, I come to you with an eminent personality, and as I promised last time also, I'll be introducing you a wonderful guest. So here I am, without further delay, I introduce you to our guest speaker this beautiful evening, and he is Mr. Saurabh Kaushal. Saurabh, I welcome you to Let's Talk. Thank you very much, Divya ma'am. Good evening. Namaste to all our viewers. Good evening. And before we may start interacting with our guest, I would like to narrate a few things about him because I think that is not so common. Saurabh, he is an engineer, space explorer, and tech entrepreneur. He is doing research from the last 7 years in the field of space debris mitigation. He is also an Inc. Fellow, Rajiv Circle Fellow, United States of America. He is a TEDx speaker. In addition, his work has been appreciated and recognized by the ex-president of India, Dr. APJ Abdul Kalam, the Vice President of India, Honorable M.H. Ansari, Honorable Ratan Tata, and many others. In addition, his work has been recognized by NASA, ISRO, IEEE, Google X, and many others. He is also a recipient of Jerome Pearson Award, USA, Dr. Kalpana Chawla Young Scientist Award, Youth Revolutionary Award, Karamveer Chakra, instituted with United Nations, and many others. In addition, US Embassy invited him in the addressing speech of Mr. Barack Obama, former President of United States of America. That's really amazing, Saurabh. Again, giving you a warm welcome. Thank you very much, Divya ma'am, for inviting me in your show. Let's talk, and thank you to the organizers of this particular, session, BTCP the Change, and it's really, really a great initiative by BTC. So thank you very much for inviting me in your show. Yes, our purpose is basically it's an initiative by SL Enterprises in collaboration with PEFI, that is Proud Educators Fraternity of India, and we endeavor to bring eminent people so that your experience, your knowledge that can be shared with our viewers. So, Saurabh, I would like first of all to ask a question. Like we have seen your TEDx talks, and we came to know that you are very much passionate about research, and it's really amazing that you first published your research paper at the age of 18 years. जिस एज में आजकल हमारे बच्चे जो हैं they are just involved in gaming, in mobiles and all. So could you please let me know who motivates you and how you started your research work? I mean, I just want to know about your journey. Definitely, ma'am. So, I mean, as I'm from a very small town that is a Yamunanagar. It is a district in Haryana. So I belong to that town, and I always, I'm a passionate about space technology. जब मैं school में था तब भी बहुत ज़्यादा मैं passionate था space technology को लेकर, and I really want to become a space engineer or an aeronautical engineer. And after that, जब मैं स्कूल में था तो मैं कॉम्पिटिशन्स देखता रहता था कि नासा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बहुत कुछ कर रही है इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी. एंड एज आपने बोला कि किससे मैं मोटिवेट हुआ, एज वी नो अबाउट डॉक्टर कल्पना चावला, जो करनाल सिटी नियर टू माय होम टाउन. सो उनसे मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट रहता था, इंस्पायर रहता था, एज वेल एज डॉक्टर कलाम जी से. जब मैं स्कूल में था तो मैं हमेशा चाहता था कि मैं स्पेस इंजीनियर बनूं या नॉटिकल इंजीनियर बनूं. एंड आफ्टर दैट आई अपीयर्ड फॉर द आईआईटी एग्जामिनेशन, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा वो एग्जाम क्रैक नहीं मैं कर पाया उस टाइम पर. बट स्टिल मेरा एक विजन था कि कुछ करना है स्पेस की फील्ड में. आफ्टर दैट I appeared for a lot of other competitive examinations in private universities and all, and I got an admission in aerospace engineering also in one of the most prestigious university, private university in India. But unfortunately, उसका जो fee structure था वो बहुत ज़्यादा high fee structure था. So at that time I was unable to pay that fee. So I decided, okay, I have to go to somewhere else. So I have taken electronics and communication engineering in Kurukshetra University affiliated college. सो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को पढ़ना शुरू किया. बट स्टिल कहीं ना कहीं दिमाग में था कि ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में कर रहा हूँ कि स्पेस की फील्ड में तो कुछ करना है, कुछ अलग से करना है, राइट. एंड आई हैव डिसाइडेड टू डू इंडिपेंडेंट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी. So when I was in the first year in 2008,
So I have started a research in the field of space technology. मैंने रिसर्च शुरू किया, मैंने इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट चीजों को ढूंढना शुरू किया कि स्पेस टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं. एंड देन आई केम टू नो अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन. कि जिस तरह अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा जंक है, मटेरियल है, पोल्यूशन है, इन द सेम वे स्पेस के अंदर भी बहुत ज्यादा जंक मटेरियल है, हम उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं स्पेस. सो दैट इज अ वेरी फैसिनेटिंग टॉपिक, जो बहुत ही एक अच्छा टॉपिक मुझे लगा कि चलो इसके ऊपर कुछ करते हैं. एंड आई हैव डिसाइडेड, ओके, लेट मी कम अप विद सम सॉल्यूशंस कि हाउ टू मिटिगेट स्पेस जंक फ्रॉम स्पेस. एंड उस टाइम पर कुछ नॉलेज नहीं थी, रिसर्च कैसे करते हैं एंड रिसर्च पेपर्स को कैसे लिखा जाता है, क्या करें, कुछ नॉलेज नहीं थी उस टाइम पर. बट स्टिल आई हैव ट्राइड कि ठीक है, कुछ रिसर्च करते हैं, इंटरनेट से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी. एंड आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन कॉलेज, सो मैं अपने डायरेक्टर से मिला. आई सेड दैट कि सर मुझे स्पेस रिसर्च के अंदर कुछ करना है. एंड ही सेड दैट कि तुम पागल हो गए हो क्या, कि तुम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो स्पेस रिसर्च में क्या करोगे जाकर, राइट? आपकी सप्लीज आ जाएंगी. सो इट्स गुड अगर आप कंसंट्रेशन करो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के ऊपर. बट स्टिल आई हैव डन रिसर्च, और उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों को लिखना शुरू किया कि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए. एंड स्टिल आई रिमेम्बर आई रोट अ वेरी फर्स्ट मेल टू पीटर स्वैन इन यूएस. सर मेरे पास कुछ आइडियाज है, मैं कुछ करना चाहता हूँ स्पेस रिसर्च की फील्ड में. इफ यू कैन हेल्प मी, देन डेफिनेटली आई कैन राइट अ रिसर्च पेपर ऑल्सो. एंड ही इज द आई मीन ही वाज द पर्सन जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इनिशियली. एंड आई हैव उन्होंने मुझे बताया कि लिटरेचर सर्वे क्या होता है, रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, क्या इसकी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, हाउ टू राइट द एब्स्ट्रैक्ट एंड एवरीथिंग. सो आई हैव डिसाइडेड यस. देन उसके बाद मैंने इसके ऊपर रिसर्च शुरू किया. एंड मेरे एक फ्रेंड है मिस्टर निशांत अरोड़ा, उसके साथ मिलकर मैंने रिसर्च को आगे कंटिन्यू किया कि हम मिलकर कुछ करते हैं. एंड आई रिमेम्बर एट दैट टाइम इन 2008 मेरे पास लैपटॉप वगैरह कुछ नहीं होता था. सो मैं निशांत के घर पर जाता था, उसके पास डेस्कटॉप होता था. एट दैट टाइम इंटरनेट फैसिलिटी थी. सो मैं उसके घर जाता था, कभी अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock, कभी इवनिंग. एंड डन द रिसर्च, उसके घर पर बैठ के रिसर्च करते थे, सब उस इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ग्रैब करने एंड ऑल. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर 6 months ऑफ रिसर्च, हमने एक रिसर्च पेपर लिखा. एंड आई सबमिटेड द रिसर्च पेपर टू आईसेक यूएसए. सो यूएसए में हमने एक कंपटीशन करवाया. आईसेक, दैट इज द इंटरनेशनल स्पेस एलिवेटर कंसोर्शियम, इन एसोसिएशन विद नासा, दे ऑर्गेनाइज वन कंपटीशन. कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड से आइडियाज मांगे थे कि कैसे स्पेस जंक को हम रिमूव कर सकते हैं. एंड आई सबमिटेड रिसर्च पेपर देयर. एंड आफ्टर 3 or 4 months के बाद उनका ईमेल आया आईसेक यूएसए से कि आपका जो एब्स्ट्रैक्ट था, दैट हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द फर्दर राउंड. एंड देन हमने एक पूरा रिसर्च पेपर लिखा. एंड रिसर्च पेपर लिखने के बाद वी हैव सबमिटेड द रिसर्च पेपर. एंड अगेन 6 months रिव्यूज में लगे एवरीथिंग. एंड 6 months के बाद हमारे पास उनका रिस्पॉन्स है कि आपका जो रिसर्च पेपर था, दैट स्टूड द Jerome Pearson Award for sending innovative ideas in the field of space junk mitigation. So that was just the beginning of my journey, right? So वो एक कहीं ना कहीं beginning थी. एंड आफ्टर दैट मैंने ये देखा कि जो लोग अपोज करते थे काम को, उसके बाद आई मीन दे स्टार्ट अप्रिशिएटिंग माय वर्क. ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो. जो डायरेक्टर, जो टीचर्स या कुछ भी थे जो अपोज करते थे, उन्होंने अप्रिशिएट करना शुरू किया. तो दैट वाज द जर्नी. एंड वहां से मुझे एक चीज समझ आई कि जब आप अपनी कैपेबिलिटीज को दिखाते हो, ओनली देन पीपल कैन स्टार्ट रिकॉग्नाइज यू, राइट? सो दैट्स व्हाई मैं हमेशा जब भी बच्चों से मिलता हूँ, स्टूडेंट से मिलता हूँ, उनको मैं बोलता हूँ कि यू हैव टू शो योर कैपेबिलिटीज, राइट? सो वंस यू कैन शो योर कैपेबिलिटीज, एंड आई एम श्योर ईच एंड एवरीवन कैन स्टार्ट सपोर्टिंग यू. एंड आफ्टर दैट उस अवार्ड से एक मोटिवेशन मिला कि अब नेक्स्ट स्टेप पे जाना है. एंड देन वी रोट टू इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. एंड देन पद्मश्री डॉक्टर वी आदिमूर्ति, हु वाज द डीन ऑफ आईएएसटी इसरो, he sent me a letter on the behalf of government of India, and he appreciated our research work. And उसके बाद जीरोम पियर्सन अवार्ड के बाद डॉक्टर कल्पना चावला इंसेंटिव अवार्ड मिला. सो दिस ऑल दिस अवार्ड्स रियली मोटिवेट मी, राइट? कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन फैक्टर होता है. सो वो उन सब चीजों ने मुझे मोटिवेट किया. लोग पूछते हैं कि आप अवार्ड्स क्या मायने रखते हैं. सो ऑल दिस अवार्ड्स रियली मोटिवेट मी. मैं एक सेल्फ मोटिवेटिंग पर्सन हूँ कि मैं खुद एक टारगेट सेट करता हूँ, मोटिवेट होता हूँ, देन आगे फर्दर बढ़ता हूँ. सो दिस वाज द जर्नी. And after that I became a Inc fellow in 2012, and after got opportunity of TED speaker की opportunity मिली. So मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं से आपको स्टार्ट करना पड़ता है, एंड आफ्टर दैट आपके बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, राइट? सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. आपको कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा. सो दिस इज द जर्नी. आई मीन एंड मेरे को ये भी रिमेम्बर है कि आई एम नॉट एन IITian, मैं क्रैक नहीं कर पाया, बट मैं मुझे बताते हुए खुशी होगी कि
After that, I gave a lot of lectures in IITs. I gave a lectures in IIT Gandhinagar, IIT Delhi, right? So वो चीजों से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि जहां पे मैं पढ़ नहीं सका वहां पर जाकर मैं लेक्चर दिए मैंने बच्चों को. So that things really motivates me in the field of innovation or in the field of research and technology. So this is a small journey of mine. I mean, in this way I've started everything. But whatever I could conclude from the words that you spoke just now, I mean, you faced so many trials, tribulations, hardships, Definitely. and anybody, I mean, you youngsters, they often crib that because of lack of resources, because of so many obstacles, they just give up. So, what was that kept you on the track, that motivated you? What was that one thing? देखिए मैम, मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि जो सक्सेस से बहुत बार फेलियर होने के बाद ही हमें एक सक्सेस मिलती है. जब हम बहुत बार फेलियर होते हैं, बिकॉज आई बिलीव सक्सेस कंसिस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर, राइट? और जब हमें सक्सेस मिलती है फेलियर्स के बाद, तो हमें बहुत अच्छा भी लगता है, राइट? सो आई मीन, सभी यंगस्टर्स को मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि आपका एक पर्टिकुलर टारगेट होना चाहिए लाइफ के अंदर, आपका एक विजन होना चाहिए और आपका एक मिशन होना चाहिए लाइफ के अंदर, राइट? सो यू हैव टू फॉलो दैट मिशन एंड विजन. आई नो, आई मीन, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. ऐसा नहीं है कि एक ही रात में सब चीजें हो जाती हैं. बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत लोग आपको अपोज भी करेंगे, राइट? और कई बार आप खुद डिमोटिवेट भी हो जाते हैं. इवन मैं भी बहुत बार डिमोटिवेट हुआ हूँ कि नहीं, इसको छोड़ देते हैं, ये क्या करेंगे इस फील्ड में करके, राइट? बट एट द एंड ऑफ द डे, जब आप सक्सेसफुल होते हैं, जो आपको खुशी मिलती है वो करने के बाद, सो आई मस्ट से टू ऑल द यंगस्टर्स, यू मस्ट हैव वन विजन, मिशन इन योर लाइफ, एंड उसको फॉलो करते जाइए. बट ये ना सोचिए कि 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में. अगर आप उसको फॉलो करते रहेंगे, एट द एंड ऑफ द डे, आई एम श्योर यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ. True. सौरभ, यू हैव मेट डॉक्टर कलाम, और डॉक्टर कलाम एक ऐसा नाम है जो हम सबके लिए, आई मीन, ही इज एन एपिटमी ऑफ वर्च्यूज, एंड यू हैव दैट, यू आर फॉर्चुनेट एनफ टू हैव अ चांस टू मीट हिम. सो आई जस्ट वांट टू नो योर एक्सपीरियंस. आई मीन, आप डायरेक्टली उनको, एक पर्सनली उनको मिले हो, और आपकी स्टोरी कुछ कुछ, एज फार एज आई कैन कंपेयर, डॉक्टर कलाम भी वंस व्हेन आई रेड हिज autobiography, he too went for getting the selection in forces, and then he was rejected. लेकिन again then he became the missile man of India. तो आपकी स्टोरी को कुछ कुछ मैं कंपेयर कर पा रही हूँ. तो आपका क्या एक्सपीरियंस था? What sort of man he was? So if I'm talking about Dr. Kalam, right? So as I'm also doing a research in the field of space technology. So Dr. Kalam तो हमारे लिए भगवान है. To be frank, it's like a god for each and every Indian. I mean, the person he was. So एक उनसे मिलने का हमेशा से एक सपना था, जब मैं स्कूल में भी था या मैं कॉलेज में आया, कि डॉक्टर कलाम से एक दिन मिलना है. So I used to write an email to Dr. Kalam every day. So I remember मैंने 2-3 साल उनको ईमेल लिखा, because I mean he was the president, missile man, DRDO, इसरो, बहुत जगह वो एंगेज रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है. बट आई रिमेम्बर कि मैं हर थर्सडे को उनको ईमेल लिखता था कि सर मुझे आपसे मिलना है, प्लीज गिव मी एन अपॉइंटमेंट. सो इसी तरह सिलसिला चलता रहा, 1 साल, 2 साल, 3 साल. And one day I wrote an email to Dr. Kalam ki sir, I want to meet with you, and within a 10 minutes I got a response from Dr. Kalam. And the good thing is that कि उन्होंने वो personally ही reply किया, ऐसा नहीं कि उनके PA ने reply किया हुआ है कुछ ऐसा. And he respond that okay, you can come down to Delhi at 7:30 p.m. At this place. Rajaji Marg वो रहते थे, 10 Rajaji Marg at a time. So I went to Delhi. So 7:30 हम वहाँ पर पहुंचे उनसे मिलने के लिए. Exactly 7:30 डॉक्टर कलाम. So I mean जब हम उनसे first time मिले, so it's like कि जैसे होता है कि हम भगवान से मिले हो, right? Because in the field of space technology is like a god for us. So उनके साथ मिले, आई मीन बहुत ही सिंपल पर्सन थे वो, बिल्कुल सिंपल, बहुत ही अच्छे नेचर के. उन्होंने बिठाया, डिस्कशन किया हमारे साथ कि एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो. देन उन्होंने जब हमारी डिस्कशन हुई, मेरी रिसर्च के बारे में पूछा कि आप रिसर्च वर्क क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं. एंड देन he said that I will forward this research work to DRDO and ISRO to his colleague, so that कि further इस रिसर्च के ऊपर काम हो सके. और लगभग 45 मिनट टू 1 आवर की हमारी एक डिस्कशन हुई, और उस डिस्कशन से बहुत कुछ सीखने को भी मिला हमसे, उनसे. जस्ट लाइक ही सेड दैट कि नॉलेज मेक्स यू ग्रेट. उन्होंने इस चीज को कोट किया कि जो आपकी नॉलेज है, आपकी इनोवेशन है, वही आपको महान बनाती है, वही आपको ग्रेट बनाती है, राइट? पीपल कैन ओनली रिकॉग्नाइज यू बिकॉज ऑफ योर वर्क, राइट? सो यू कैन डू सम यूनिक वर्क इन योर लाइफ. आई मीन मैं हमेशा जब बच्चों से भी मिलता हूँ, मैं भी उनको यही बोलता हूँ कि आप अपनी लाइफ में कुछ यूनिक वर्क कीजिए. जस्ट लाइक यू हैव अ रोल नंबर इन योर क्लास. हम सबको रोल नंबर से जानते हैं. इन द सेम वे, इन दिस यूनिवर्स, इन दिस होल वर्ल्ड, वी कैन रिकॉग्नाइज people with this work,
राइट, उनके काम से हम उनको जानते हैं कि ओके आपने इस फील्ड में अच्छा काम किया, जस्ट लाइक डॉक्टर कलाम को आज हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, उन्होंने बहुत मिसाइल्स बनाई, डीआरडीओ में काम किया। सो दिस आर द थिंग एंड ही सेड दैट कि आप अपनी लाइफ में मल्टी डिसिप्लिनरी भी काम कीजिए, ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग सिर्फ एक ही जगह चल रहा है, ओके आई हैव टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। जब आप मल्टीपल सोचते हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स में सोचते हैं, तो आपका दिमाग और तेजी से रन करता है, राइट। सो और ज्यादा शार्प होता है आपका दिमाग जब आप मल्टीपल चीजों को आप सोचते हैं और उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। सो इट वाज रियली ग्रेट मीटिंग विद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से जो मीटिंग थी, बहुत कुछ सीखने को मिला इन द फील्ड ऑफ रिसर्च वर्क। और जो उनकी बातें थी उसको हमने कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट भी किया, बिकॉज इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग आई मीन बातें बहुत करते हैं, बट यू हैव टू इम्प्लीमेंट दोस थिंग इन योर लाइफ, राइट। सो इफ यू कैन इम्प्लीमेंट दोस थिंग देन डेफिनेटली आई मीन आई एम श्योर आप ऐसे लोगों से जब मिलते हैं, उनकी बातों को इम्प्लीमेंट करते हैं, देन सक्सेसफुल डेफिनेटली आप हो सकते हैं लाइफ के अंदर। सो इट वाज रियली अ ग्रेट मीटिंग विद डॉक्टर कलाम। Great. Sort of like we are living in a tech era, 21st century, and much is being talked about innovation and all. So I just want to know your personal opinion, whether like the parents, they keep on pressurizing their children for getting scores. So I just want to know your personal opinion. I mean, whether we should go for marks, or does creativity matter? Innovation, that's more important. डेफिनेटली। सो जैसा कि हम सबको पता है, अभी थोड़े दिन पहले ही 12th और 10th का रिजल्ट भी आया है, राइट। सो इवन सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा, बहुत पेरेंट्स डाल रहे हैं कि माय सन माय डॉटर गॉट 90%, 95% मार्क्स एंड ऑल, राइट। सो बच्चों के ऊपर कहीं ना कहीं, आई मीन इट्स माय पर्सनल व्यू, कि बच्चों के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर भी रहता है उनके पेरेंट्स की तरफ से कि ओके आई हैव टू स्कोर 95% मार्क्स। और अभी मैंने एक न्यूज भी सुनी कुछ दिन पहले कि वो बच्चा 95% मार्क्स नहीं ले सका तो उसने सुसाइड कर लिया, राइट। तो उस तरह का एक साइकोलॉजिकली और मेंटली प्रेशर बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा, और हम मुझे लगता है कि उनको एक फ्रीली इंडिपेंडेंट लाइफ जीने देना चाहिए एट अ स्कूल स्टेज, बिकॉज आई बिलीव जैसा आपने पूछा, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, राइट। सो 21st सेंचुरी इज अ सेंचुरी ऑफ टेक्नोलॉजीज। हमें मार्क्स नहीं चाहिए, इट्स ओके, आई मीन 60% मार्क्स इज इनफ, right? Even in if when I was in school in 10th class, I have secured around 69% marks in 12th class, right? So जरूरी नहीं है कि आपका एम्स में एडमिशन होगा या आईआईटी में एडमिशन होगा तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स, आप अपने आसपास देखिए जो आईआईटीएंस नहीं है, पेरेंट्स का प्रेशर है कि आई मीन 10th क्लास में होते हैं बच्चे, उनको आईआईटीज की कोचिंग दिलवा रहे हैं, एम्स की कोचिंग दिलवा रहे हैं, राइट। कि प्रेशर कि आपको आईआईटीएन बनना है, एम्स में एडमिशन लेने हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप तब भी सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आप छोटी जगह से, इवन सरकारी स्कूल से भी अगर आप पढ़े हो तब भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। लॉट ऑफ एग्जांपल्स। और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, यस वी आर लिविंग इन अ टेक्नोलॉजी इरा, और मैं ये मानता हूँ हमारी कंट्री हमेशा ये बोलती है कि हम सुपर पावर या वर्ल्ड पावर बनना चाहते हैं, राइट। सो मुझे लगता है कि अगर किसी भी कंट्री को सुपर पावर या वर्ल्ड पावर बनना है तो सिर्फ वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने से नहीं हो सकता है। उस कंट्री के अंदर मैक्सिमम इनोवेशंस होनी चाहिए, उस कंट्री के अंदर मैक्सिमम टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए। अगर जिस कंट्री के पास टेक्नोलॉजीज हैं, जिस कंट्री के पास इनोवेशंस हैं, देन डेफिनेटली वही कंट्री लीड करने वाली है आज की डेट में। और इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल, आज की डेट में हम कोविड-19 को देख रहे हैं, राइट। अगर हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, हम लाइफ को बचा सकते हैं। जिस कंट्री के पास वेंटिलेटर्स नहीं होंगे आज की डेट में, वो लाइफ को नहीं बचा सकता। सो व्हाट इज अ वेंटिलेटर? वेंटिलेटर इज बेसिकली अ टेक्नोलॉजी, राइट। सो वी हैव टू कम अप विद अ लॉट एंड लॉट टेक्नोलॉजीज इन ऑल द एरियाज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी आप रोबोटिक्स में लेके आए, आप एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा काम करें। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एज आई एम फ्रॉम यमुनानगर, सो मेरे घर से कुछ ही दूरी पर एक पर्सन है, धर्मवीर कंबोज, एंड ही इज अ एग्रीकल्चरिस्ट, एंड वो बहुत सालों पहले रिक्शा चलाते थे दिल्ली के अंदर। और मुझे नहीं लगता कि वो शायद कुछ ज्यादा भी पढ़े लिखे भी हों, आई डोंट नो। और रिक्शा चलाते थे, बट उनका एक विजन था कि मुझे एक दिन फ्लाइट में बैठना है। अब एक रिक्शा चलाने वाला फ्लाइट में बैठने का एक विजन लेके चलता है, बट ही कलेक्टेड द मनी, उसने पैसे इकट्ठे किए और फ्लाइट में बैठा, बॉम्बे गया, बॉम्बे से फिर वापस आया, बिकॉज उसका एक विजन था मुझे फ्लाइट में बैठना है। एंड देन वो सब काम छोड़ के अपने गाँव में वापस आ गया। उसका एक दामला गाँव है नियर टू रादौर, हरियाणा। एंड वहां पर अगर उसने इनोवेशन के ऊपर काम करना शुरू किया कि एग्रीकल्चर की फील्ड में मैं इनोवेशन कैसे कर सकता हूँ, एंड ही मेड वन मल्टीपर्पज एग्रीकल्चर मशीन। एक उन्होंने एक ऐसी मशीन डिजाइन करी कि जिसके अंदर आप कोई भी फ्रूट को डाल दो, किसी भी फूड को डाल दो, उसका वो जूस निकाल लेता है या उसकी वो पीलिंग कर देता है एंड एवरीथिंग, राइट। सो उन्होंने वो मशीन बनाई, वो इनोवेशन थी, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनको अवार्ड दिया उस इनोवेशन के लिए। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, आज की डेट में उनकी वो मशीन पूरे वर्ल्ड वाइड जाती है। साउथ अफ्रीका, यूरोप, यूएस के अंदर वो मशीन जा रही हैं।
and he is making a different products in a small village. और प्रोडक्ट्स बनाने के अलावा वो जॉब भी प्रोवाइड कर रहे हैं. अभी 2 दिन पहले वो चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा के साथ भी मिले. सो मेरा कहने का मतलब है कि उस पर्सन के पास 95% मार्क्स नहीं थे, 98% मार्क्स नहीं थे, बट उस पर्सन ने कुछ ना कुछ इनोवेशन करी. एंड टुडे आई मीन एवरीवन नोन टू हिम. आई मीन सब लोग जानते हैं. फॉरेन, इवन फॉरेन के लोग अभी कुछ दिनों पहले साउथ कोरिया और जापान से लोग उनके गांव आए हुए थे उनसे मिलने के लिए. सो ये एक चीज है कि आई मीन फॉरेन के लोग आपके पास आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए बिकॉज ऑफ योर इनोवेशन. जैसा कि कलाम सर ने कहा कि नॉलेज और इनोवेशन मेक्स यू ग्रेट. तो इट्स जस्ट अ फैक्ट. आप मार्क्स के पीछे मत भागिए. ठीक है, आप स्टडीज कर रहे हैं, 55, 60, 70% मार्क्स इज ओके. आई मीन इट्स मोर देन सफिशिएंट अगर आपके 70% मार्क्स भी हैं. But if you are in school, if you are in university, you can do something innovative. This is the right time. मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि ये बहुत ही एक important और right time है. इवन मैं पेरेंट्स को भी बोलता हूँ कि इंडिपेंडेंट होकर जो ये करना चाहते हैं, whether in the field of technology, even sports में अच्छे हैं तो स्पोर्ट्स में कुछ करिए, म्यूजिक में अच्छे हैं तो म्यूजिक में कुछ करिए, बट यू कैन डू सम इनोवेटिव वर्क इन. आप मार्क्स के पीछे मत भागिए, राइट. इनोवेशंस कीजिए. और हमारी कंट्री को भी नीड है इनोवेशंस की. इफ वी कैन सी द पेटेंट्स इन इंडिया, बहुत कम पेटेंट्स है हमारे पास. इफ वी कैन कंपेयर इट विद एनी अदर कंट्री, राइट. सो आई मस्ट से यू कैन डू अ लॉट ऑफ इनोवेशन वर्क व्हिच इज द नीड ऑफ एन आवर, जो इस आर की नीड है. I completely agree with you that really we need innovators. But despite being so much of academic pressure, pressure by parents, pressure by school authorities, I mean, so much of, just rushing after the marks is there. So how can students, they be innovators? I mean, where is the time? What they should do? देखिए मैम, एज यू मेंशन अबाउट द टाइम एंड द फर्स्ट थिंग इज दैट डेफिनेटली कि हमें पेरेंट्स को काउंसिल करने की जरूरत है. पेरेंट्स को समझाने की जरूरत है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन, राइट. कि मार्क्स से ज्यादा आपकी स्किल डेवलपमेंट क्यों अच्छी है, क्यों क्यों हमें स्किल्ड होना चाहिए, राइट. आज की डेट में हमें कोई भी जॉब करनी है, कुछ भी काम करना है, इफ वी आर स्किल्ड इन दैट थिंग देन डेफिनेटली वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. सो हम उस फील्ड के अंदर कर सकते हैं. अगर हमारे पास स्किल सेट ही नहीं होगा, so we can't do anything. If I'm giving you the example of Canada, वहाँ पे लोग जो भी छोटा मोटा घर का काम होता है खुद कर लेते हैं. आई मीन प्लम्बरिंग से लेके, अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी खराब है, कारपेंट्री का काम है, वो घर पे खुद करते हैं. बट इंडिया में आज भी हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट की, स्किल सेट की कमी है. आज की डेट में अगर मैं एक स्कूल के बच्चे को बोलता हूँ कि आपको एक इलेक्ट्रिक पॉइंट ठीक करना है, वो नहीं कर सकता. बाहर से हमें बुलाना पड़ता है पर्सन को, बिकॉज वो चीजें हमें सिखाई नहीं जा रही है, वो स्किल सेट की कमी है. एंड पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कहीं ना कहीं कि मार्क्स आज की डेट में उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे. आई मीन पहले होता था कि ठीक है हमें मार्क्स लेने एंड ऑल दिस थिंग्स, और बट इनोवेशन एंड स्किल सेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. एंड एज यू मेंशन अबाउट कि टाइम टाइम इशू है बच्चों के पास, राइट. सो आई मीन ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं, और मैं, मेरे पास एक सिंपल सा इसका जवाब है कि हर एक पर्सन के पास 24 आवर्स हैं. जो नोबेल प्राइज जीत रहा है उसके पास भी 24 आवर्स हैं, और एक आम इंसान के पास भी 24 आवर्स हैं. सो इट्स अप टू यू कि उस 24 आवर्स को आपको कैसे यूज करना है, राइट. अगर आप आई मीन इतनी अच्छी रिसर्च कर दें तो आपको नोबेल प्राइज भी 24 आवर्स में काम करने के बाद मिल सकता है. और अगर आप उसका यूटिलाइजेशन ना करें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते 24 आवर्स में. सो दिस इज वेयर द टाइम मैनेजमेंट कम, कि आपको टाइम को कहाँ कहाँ कितना कितना स्पेंड करना है. और इवन आई मस्ट से कि आज की डेट में बहुत बच्चे सोशल मीडिया के ऊपर भी टाइम स्पेंड करते हैं. एंड और उसमें कुछ बुराई नहीं है, और अगर आप उसको एक पॉजिटिव वे में एक सही तरीके से यूज करें. I interact with a lot of people from NASA or other space agencies using social media, right? So मैं उसका उस वे में यूज करता हूँ सोशल मीडिया का, कि पॉजिटिव वे में उसको मैं यूज करता हूँ. इफ यू हैव मेड एनी इनोवेशन यू कैन पुट इट ऑन सोशल मीडिया, वायरल हो सकते हैं आप, राइट. आपका कुछ भी काम दुनिया तक पहुंच सकता है. तो उसको एक अच्छे वे में आप लेके जाएं. एंड ईच एंड एवरी पर्सन इज हैविंग 24 आवर्स. सो उसको आपको कैसे यूज करना है, इट्स योर 24 आवर्स. देन यू कैन डिसाइड हाउ टू यूज. उसमें आप एक लेवल ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं. इट्स अप टू यू 24 आवर्स को आपको कैसे यूज करना है. कैसे यूज करना है. True. Saurabh, the track, I mean, our conversation is actually inching closer to a very debatable topic about the curriculum. And that is, really much talked about these days. So what are your views about the education system? Does it need some sort of revamping? Definitely, if I'm talking about the education system,
I'm not that I mean I'm not the person की जो बहुत कमेंट्स करे इसके ऊपर, बस still being an innovator and engineer definitely मैं भी बुक्स को पढ़ता हूँ, मैं भी सिलेबस और करिकुलम को स्टडी करता रहता हूँ। एंड आई हैव सीन कि जब मैं स्कूल में था 2006 7 8 में, तब भी वही सब चीजें थी हमारी बुक्स के अंदर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एनसीईआरटी और सीबीएसई सिलेबस। और आज भी वही सब चीजें हैं, कुछ चीजें चेंज नहीं हुई हैं उसके अंदर जब मैं उस सिलेबस को पढ़ता हूँ, राइट। तब भी हम वही चैप्टर्स पढ़ रहे थे, वही कंटेंट पढ़ रहे थे, और आज भी हम वही सब चीजों को कर रहे हैं। सो देर इज अ रिक्वायरमेंट कि कहीं ना कहीं जो करिकुलम है उसके अंदर चेंजेस आए। इट्स अ मोर ऑफ एक्सपीरियंशियल करिकुलम होना चाहिए, जिसके अंदर मैक्सिमम हैंड्स ऑन होना चाहिए करिकुलम के अंदर। एंड वी हैव टू ऐड सम इनोवेटिव थिंग्स इन आवर करिकुलम जो आज की डिमांड है। फॉर एग्जांपल अभी सीबीएसई ने बहुत अच्छा स्टेप किया है टू इंट्रोड्यूस द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। सो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं हमारा आई मीन एजुकेशन सिस्टम, कहीं ना कहीं वो चेंजेस आने शुरू हुए हैं, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि वो लेट आए हैं। वो चेंजेस जो आज से 5 साल पहले आ जाने चाहिए थे, वो चेंजेस अब आने शुरू हुए हैं 2020 के अंदर। और इवन आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनको हम सिर्फ सोच रहे हैं, वो आने वाले 5 साल में आ जाएंगे, राइट, वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। तो जब हम उस लेवल पे जाएंगे तब फिर हम कहीं ना कहीं डिले हो जाएंगे, हम बैक हो जाएंगे। सो हमें वो चीजें अपने करिकुलम में चाहिए जो एक फ्यूचर में जिसकी रिक्वायरमेंट हो, राइट। फ्यूचर टेक्नोलॉजी को हमारे करिकुलम में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रोबोटिक्स, रोबोटिक्स आज दिन तक हमारे करिकुलम में कहीं इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो स्कूल में वो एक्स्ट्रा करवाते हैं रोबोटिक्स, बट उन चीजों को हमारे करिकुलम का पार्ट होना चाहिए। So whenever we can design the curriculum, then definitely we have to think about all these parameters. हमें इन सब पैरामीटर्स को सोचते हुए करिकुलम को डिजाइन करना चाहिए कि उसके अंदर बेसिक्स कंसेप्ट भी क्लियर हो, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी पार्ट भी क्लियर हो। If I'm talking about science, right? So we are only teaching the science. We are not teaching the technology part. For example, we are only teaching the Newton's third law in our books. हम ये नहीं बता रहे हैं कि रॉकेट बनेगा कैसे। क्या क्या स्कूल में हम एक रॉकेट बनाना नहीं सिखा सकते बच्चे को? अगर हम रॉकेट बनाना भी सिखा दे बच्चे को, दैट इज द कंप्लीशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टुगेदर, राइट। सो आई मीन डेफिनेटली देयर इज अ नीड कि कुछ ना कुछ चेंजेस हो उसके अंदर जो करिकुलम है आज की डेट में, एंड एजुकेशन सिस्टम में डेफिनेटली देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ चेंजेस। और उसके लिए जो भी पॉलिसी मेकर हैं उनको बैठना चाहिए। along with the policy maker, I think they also have to take support from young innovators, young entrepreneurs, so that they can also give their feedback कि आज की डेट में क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए सिलेबस के अंदर। इवन आई मस्ट से वी हैव टू टेक अ फीडबैक फ्रॉम पेरेंट्स, वी हैव टू टेक फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स आल्सो कि स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, राइट। हम तो उनको फीड कर रहे हैं कि ओके आप न्यूटन थर्ड लॉ भी पढ़ो, आप ये भी पढ़ो, बट एग्जैक्टली स्टूडेंट्स चाहते क्या है, उनसे भी तो पूछा जाए कि आपको क्या पढ़ना है, राइट। सपोज इफ आई एम गिविंग द एग्जाम कंडीशन कि आपको साइंस पढ़ना है, आपको साइंस के अंदर क्या क्या चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूटन थर्ड लॉ, आप न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर क्या क्या बनाना चाहते हैं। सो वी हैव टू टेक द फीडबैक फ्रॉम डिफरेंट पर्सन, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू make a good curriculum for a school student. So feedback is very much important, not only from teachers or principals, but also from students, parents, innovators, entrepreneurs. So we have to take a feedback from each and every person, and then definitely even जैसे अभी AI की हम बात करते हैं, तो CBSE has taken a feedback from I remember कि जिसने पूरा AI को CBSE को AI का curriculum दिया, they are from Singapore, right। कहीं ना कहीं उन्होंने उनसे सपोर्ट लिया। सो इन द सेम वे यू कैन टेक अ सपोर्ट फ्रॉम द इनोवेटर फ्रॉम वर्ल्ड वाइड, आई मीन कैन create an open platform, there each and every person can submit their ideas, and accordingly they can change the curriculum. Okay, great. So that means you want to advocate the fact that experiential learning that is involving head, hand, and heart. These three things they should be involved, right? Definitely. Okay. And it's the same as experiential learning that we talk about these days. Am I right? Yeah, experiential learning is, I mean, it's a very important thing. चाहे वो मैथमेटिक्स आप पढ़ा रहे हो या साइंस पढ़ा रहे हो, राइट। सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक मेरा ये मानना है कि आप बच्चों को टूल्स ही नहीं देंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये चीजें हैं क्या। हम हर रोज बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं, वो सब चीजें उनको सिर्फ बताते हैं, बट हम उनको कभी टूल्स नहीं देते हैं। दिस इज द थिंग्स लाइक दैट कि हमने एक बच्चे को बता दिया कि वो ऐप है, आप डाउनलोड कर लेना, बट उसके पास मोबाइल फोन ही नहीं है, राइट। तो वो डाउनलोड कहाँ करेगा? सो इन द सेम वे वी हैव टू प्रोवाइड द tools to a student, we have to provide the maximum tools, right, scientific tools to our students। और पेरेंट्स को भी मैं ये कहूंगा कि आज के डेट में बच्चे जब डिमांड करते हैं कि मुझे मोबाइल फोन लेना है, हम उनको इमीडिएटली मोबाइल फोन ले देते हैं, बट द सिचुएशन ये होनी चाहिए कि बच्चा डिमांड करे कि मुझे माइक्रोस्कोप लेना है, मुझे टेलीस्कोप लेना है,
तो उस लेवल तक हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट को लेके जाना है कि जिस दिन बच्चा ये डिमांड करने लग जाए कि मुझे एक माइक्रोस्कोप लेना है, मुझे टेलीस्कोप लेना है, मुझे मोबाइल फोन नहीं लेना है, सो उस दिन हम सोचेंगे कि हमने बहुत चेंजेस किए हैं अपने बच्चों के अंदर, अपने बच्चों के माइंडसेट में, पेरेंट्स के माइंडसेट के अंदर, और उस लेवल तक जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें अपने कंट्री को एक सुपर पावर बनाना है इनोवेशन की अगर हमें बात करें तो। Hmm. Abhi, just now you mentioned about making use of mobiles and laptops, and since because of this pandemic, now the whole of the curriculum that is being, taken up through these online classes only. So I just want to know, do you feel that the online education that is being imparted nowadays that is really beneficial? What's your say about it? सी डेफिनेटली इस पैंडेमिक में हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को भी मिला है वेदर इट इज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और इन एनी फील्ड, राइट। वी हैव लर्न कि अभी तक हम सब चीजें ऑफलाइन कर रहे थे और इमीडिएटली हमें ऑनलाइन पर जाना पड़ गया कि एक आई मीन सिंपल क्लिक से हम कुछ भी चीजें कर सकते हैं। सो हर चीज के वही दो पहलू होते हैं, उसकी कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं, और इस पैंडेमिक से, कोविड-19 से एक ये अच्छी बात सीखने को मिली कि हम टेक से भी हो गए, हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े हैं, हम ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर आए हैं। इवन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी हमेशा बोलते हैं कि हम हमें एक डिजिटल इंडिया बनाना है, राइट। तो वो डिजिटल इंडिया तभी बनेगा कि जब सब चीजें डिजिटल या ऑनलाइन होंगी, और अब एजुकेशन भी ऑनलाइन हो गया है, और कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के अंदर हमारे टीचर्स जो भी प्रिंसिपल्स हैं, एडुकेटर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई थी पढ़ाने के अंदर, बिकॉज फर्स्ट टाइम एक चेंजेस आया था कि ऑफलाइन से हम सीधा ऑनलाइन जा रहे थे वहां पर, तो हमें कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। तो बट मैं ये कहूंगा कि धीरे 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 वो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो रही हैं। आज नहीं तो आज से 5 साल के बाद तो हमें ऑनलाइन आना ही था, राइट। सो इट गुड कि हम पहले ही ऑनलाइन आ गए, ऑनलाइन एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे, जो चीजें हम अगले 5 साल के अंदर करते। बट कहीं ना कहीं आज भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बच्चों के पास प्रॉपर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर मोबाइल फैसिलिटी नहीं है। बट मैं ये कहूंगा कि कोई भी चीज है, पहले प्रॉब्लम्स आती हैं एंड देन धीरे 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 उसके सॉल्यूशंस भी आएंगे। सो दैट्स व्हाई आई मस्ट से कि इनोवेशन क्या है कि सॉल्यूशंस है, हमें सॉल्यूशन निकालने हैं इन सब चीजों की, कि जिन चीजों की आज प्रॉब्लम फेस हो रही है, जो एक बैरियर बन रहे हैं, इंटरनेट फैसिलिटी बैरियर है, मोबाइल्स नहीं है, और आई मस्ट से कि आज की डेट में हर एक पॉपुलेशन, आई मीन बात करता हूँ तो सबके पास घर में एक ना एक मोबाइल है जिसके थ्रू हम पढ़ा सकते हैं आज की डेट में। सो धीरे धीरे वो चीजें चेंज हो रही हैं, और जो प्रॉब्लम्स हैं डेफिनेटली उसके सॉल्यूशंस में आएंगे, बिकॉज इफ वी कैन कंपेयर इंडिया विद यूएस एंड यूरोप, यूएस एंड यूरोप में ऑलरेडी ऑनलाइन एजुकेशन चल रही थी, बहुत बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ भी रहे थे, राइट। और ऑनलाइन एजुकेशन में एक बेनिफिट उनको ये मिल रहा था कहीं ना कहीं वो अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग, आई मीन जिस टाइम में उनको सुटेबल लगे वो उस टाइम पर पढ़ सकते हैं। बट जब हम ऑफलाइन की बात करते हैं तो एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम रहता है हमारे पास, टाइम पीरियड, उसी टाइम पीरियड में हमें सब कुछ करना है। बट ऑनलाइन का ये बेनिफिट है कि जिस टाइम में फ्री हुआ मैं उस टाइम वो कर सकता हूँ, किसी और टाइम में मैं कुछ और कर सकता हूँ। बट अगेन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अ टीचर्स कि अगर वो बच्चा किसी किसी टाइम पे कुछ करता है, सो वो प्रॉब्लम्स हैं कहीं ना कहीं। बट इट्स अ गुड थिंग कि हम ऑफलाइन से ऑनलाइन आए हैं, और आई एम श्योर इन 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 अ कमिंग ईयर्स ये चीज हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल भी होने वाली है कुछ आने वाले टाइम के अंदर, कि हम ऑनलाइन मूव करके। अब ये देखिए, जब हम ऑनलाइन मूव करें तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, वो सारी की सारी प्रॉब्लम आज की डेट में सॉर्ट आउट हो जाएगी। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्कूल्स, स्कूल्स को बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। they have to focus on the quality education only, quality content, quality curriculum, right। अब उनको इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन आने से। अब उनको इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि हम क्वालिटी चीजें कैसे बच्चों तक पहुंचाएं, क्वालिटी वर्क कैसे करें। तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट्स भी होंगे जब हम ऑनलाइन ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर आएंगे तो। True. Mr. Saurabh Kaushal, he is a scientist, young scientist, researcher, and an entrepreneur. So, how can our kids follow the suit? How can they be entrepreneurs? Just a tip for them. डेफिनेटली मैम, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटरप्रेन्योर, सो डेफिनेटली एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के अंदर बहुत सारे फेलियर्स भी हैं, बहुत सारी स्ट्रगल भी है। और अगर आप को बहुत सारा टाइम भी देना पड़ता है अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के अंदर आना है, अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना है। और आई मस्ट से कि जब मैं इनोवेशन की बात करता हूँ तो इनोवेशन से हम एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत इजीली जा सकते हैं, राइट। इनोवेशन से हम एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और आज की डेट में इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एंड इट इज आल्सो ट्रू देयर आर a billion of problems in our country, right?
and we have to come up with a million of solutions for those problems. So हमें solutions से निकल के आना पड़ेगा उन problems के. If I'm talking about the current problems, the COVID-19, right? सबसे बड़ी problem आज की date में चल रही है. So if you have an innovative idea, you can come up with the idea, you can make the prototype, you can make the product, and you can convert that product into a startup or an entrepreneurship, right? In this way, I mean, you can convert your innovation into the entrepreneurship. So I must say, I mean, बहुत सारी problems हैं, हम अपने आसपास ही देखेंगे. अगर मैं एग्रीकल्चर की फील्ड में देखता हूँ, there are a lot of opportunities. You can start working on a organic farming, you can start working on a vertical farming. जो इसराइल कर रहा है vertical farming, क्यों नहीं हम इंडियंस भी कर सकते हैं. एंड ऐसा नहीं है कि हमें एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पीएचडी करनी पड़ेगी या एमबीए करनी है. मेरा ये मानना है कि एक 12th क्लास का स्टूडेंट के पास भी अगर एक अच्छा आइडिया है, वो भी एक अपनी कंपनी शुरू कर सकता है. एक 10th क्लास के बच्चे के पास आइडिया है, वो भी कर सकता है. बट अगेन द थिंग इज दैट यू हैव टू कम अप विद द इनोवेटिव आइडिया. आपको टाइम निकालना पड़ेगा उन सब चीजों के लिए, कुछ ना कुछ नया लेके आना पड़ेगा, प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा उसका. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपने मेंशन किया रिसर्च. सो कहीं ना कहीं आज भी हमारी कंट्री के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिसिंग है. हमारे करिकुलम में से, हमारे एजुकेशन सिस्टम में से हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, राइट? स्कूल का स्टूडेंट भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकता है, कॉलेज का भी कर सकता है. हम सिर्फ हमारे हमारे माइंड में हमेशा ये आता है कि रिसर्च तो सिर्फ पीएचडी होल्डर ही कर सकते हैं, जो वो पीएचडी करेंगे तभी रिसर्च करेंगे. ऐसा कुछ नहीं है. 10th क्लास का 12th क्लास का बच्चा भी रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है. उसकी इमेजिनेशन भी इतनी अच्छी हो सकती है कि वो इतना इनोवेटिव आइडिया हमें सोल्यूशन दे दे. सो आई मस्ट से टू ऑल द स्टूडेंट्स कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें. चाहे 30 मिनट्स का टाइम निकालिए हर रोज, कुछ ना कुछ नया सोचिए, कुछ ना कुछ नई चीज के ऊपर रिसर्च कीजिए, उसका प्रोटोटाइप बनाइए, उसके पेटेंट लीजिए, एंड यू कैन कन्वर्ट ऑल दिस थिंग्स इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप. एंड यस, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी जब मैंने स्टार्ट की, आई वाज इन यूएस इन 2015. आई हैव सीन द एजुकेशन सिस्टम इन यूएस की बच्चे कुछ प्योरली अलग कर रहे हैं, राइट? आई वाज इन यूएस एज अ पार्ट ऑफ फेलोशिप एंड आई केम बैक टू इंडिया and I've decided, okay, I will also start my own company in India in the field of education, and I want to give an innovative tool to a students. बट उस जर्नी के अंदर जब आप इनोवेटिव जर्नी, आई एम नॉट अ एमबीए और आई एम नॉट अ मार्केटिंग पर्सन, राइट? स्टार्टिंग में हमने काम शुरू किया, बहुत सारी रुकावटें आई, हमारे पास पैसे नहीं थे. सबसे बड़ी रुकावट यही आ जाती है कि आपके पास पैसे नहीं है. देन तो उन सब चीजों से आपको खुद ही सोचने पे मजबूर होना होता है कि अब जीरो है, कुछ ही नहीं है मेरी जेब में, अब मैं स्टार्ट कैसे करूं, राइट? देन आपके पास कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजीज आनी शुरू होती हैं आपके दिमाग में. ओके, अब ये करते हैं तो इससे रेवेन्यू जनरेट होगा. अब जब आपके जेब में 5-10 हजार रुपए आता है रेवेन्यू, देन आपका और दिमाग चलता है कि ओके, अब इसको कैसे मल्टीपल करना है. तो दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? और आपके पास मार्केटिंग की कोई डिग्री नहीं होती, आपके पास एमबीए की डिग्री नहीं होती, बस स्टिल आप काम करते हैं because of your innovation, because of you can convert your innovation in the product. So entrepreneurship is a combination of everything. One man army बन के आपको काम करना पड़ता है, आपको प्रोडक्शन भी खुद करनी पड़ती है, मार्केटिंग भी खुद करनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी खुद करना है अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है. बट एट द एंड ऑफ द डे आपको खुशी मिलती है कि आप अपने लिए काम कर रहे हैं, आप अपने विजन के लिए, अपने पैशन के लिए काम कर रहे हैं. तो बेस्ट थिंग इज दैट यू आर वर्किंग फॉर योर पैशन, राइट? अपने पैशन के लिए आप काम कर रहे हैं, जो आपका पैशन था उसी को लेकर आप काम कर रहे हैं. और वो एक सबसे एक अच्छी चीज होती है कि जो आप बचपन से चीज को चाहते हैं वही आप आगे कंटिन्यू करें, और उससे बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती. Great. Saurabh, will you please mention about smart circuit innovation that I see along with your picture? What is that? So basically, Smart Circuits Innovation is an education company. So जिसका हमारी एक आप ड्रीम कह सकते हैं, विजन कह सकते हैं, वन स्टूडेंट वन इनोवेशन. तो हमारा एक मिशन है, एक विजन है कि हर एक स्टूडेंट एक इनोवेशन करे, राइट? जिस दिन हर एक बच्चा एक इनोवेशन करने लग गया, उस दिन डेफिनेटली हमारी कंट्री जो है एक सुपर पावर, वर्ल्ड पावर भी बन सकती है. सो इन दिस कंपनी वी आर वर्किंग on a project starting from science to space technology, right? So we are working on a different type of projects in smart circuits innovation. We are working on innovation. I mean, if we are talking about artificial intelligence, space technology, so we are working on all the segments in a smart circuits innovation. And I'm giving you one example, as I mentioned about one student, one innovation. Last year, our student have also developed a high altitude balloon satellite, and they have launched the satellite in stratosphere, right? So this type of a real time project we really want कि स्कूल के बच्चों ने सैटेलाइट बनाई. हम हमेशा ये सोचते थे जब हम स्कूल में होते थे कि साइंटिस्ट ही सैटेलाइट बना सकते हैं, सिर्फ इसरो ही सैटेलाइट बना सकते हैं, नासा ही बना सकते हैं.
बट वो चीजें ऐसा नहीं है कि अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, इनोवेटिव है, तो हम स्कूल में भी सैटेलाइट बनाकर लॉन्च कर सकते हैं। दिस इज द नीड ऑफ एन आवर कि हमारे बच्चे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें, जिस चीज की नीड है उसके ऊपर काम करें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी के अंदर, कंट्री के अंदर, वर्ल्ड वाइड, तो ना उनके सोल्यूशंस के ऊपर काम किया जाए, and we can give those solution to our society for the development of humanity nation. Great. Seems like, I just feel like talking to you, but since we are running short of time, so चलते चलते लास्ट में एक क्वेश्चन, लाइक सर सीवी रमन के बाद एक भी नोबेल प्राइज इंडिया के पास नहीं आया है, तो मुझे वो पूछना है कि लाइक यू टॉक अबाउट वन स्टूडेंट वन इनोवेशन, क्या ऐसा किया जाए, एंड जस्ट बी एक जनरल सॉल्यूशन चाहिए। कुछ ऐसे बजट स्कूल्स भी होते हैं वेयर वी डोंट हैव इन आवर चिल्ड्रन, दे डोंट हैव एन एक्सेस टू प्रॉपर रिसोर्सेज, तो क्या ऐसा किया जाए कि हमारे वो बच्चे भी जो है वो इनोवेटर्स बन सके, वो रिसर्चर्स बन सके। देखिए मैम, एज आपने मेंशन करी कि बजटेड स्कूल्स है और रिसोर्सेज नहीं है, सो सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं होते वहीं के बच्चे कुछ ना कुछ बहुत अच्छा काम करते हैं, बिकॉज उनके पास रिसोर्सेज नहीं है तो उनका दिमाग ज्यादा चलता है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ये चीज बनानी है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो अब मैं लिमिटेड रिसोर्सेज में इन सब चीजों को कैसे बनाऊं, राइट? सो द थिंग इज दैट आई मीन, बच्चा चाहे बजटेड स्कूल का हो या जैसे सरकारी स्कूल भी बच्चे, इज दैट हमें उसके गाइडेंस प्रोवाइड करने की जरूरत है आज की डेट में। अगर एक उसके राइट गाइडेंस मिलेगी, देन आई एम श्योर कि दुनिया का कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है, जैसा हम उसको गाइड करेंगे वो वैसा ही करेगा। सो इट्स द ड्यूटी ऑफ प्रिंसिपल, टीचर एंड पेरेंट्स कि उसको गाइड कीजिए, सिर्फ नंबर्स के पीछे मत भागिए, राइट? उसको इंडिपेंडेंटली सोचने दीजिए कि उसको करना क्या है लाइफ के अंदर। हम उसको पहले से प्रेशर करना शुरू कर देते हैं 5th 6th क्लास में कि तुम्हें आईआईटीएंस बने, तुम्हें डॉक्टर बनना है, बट उससे तो पूछिए कि वो क्या बनना चाहता है लाइफ के अंदर, राइट? माइट बी वो रोबोटिक्स में पसंद हो, उसको प्रोग्रामिंग पसंद हो। सो यू हैव टू गाइड योर स्टूडेंट्स, एंड लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर बहुत कुछ किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता है। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल आई मीन हु कैन सपोर्ट दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट जो रियली में कुछ करना चाहते हैं। हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है। आज भी बहुत सारी स्कॉलरशिप, फेलोशिप्स अवेलेबल है। इवन आई वाज इन यूएस एज अ पार्ट ऑफ फेलोशिप, सो मैं जब 2015 में यूएस में गया, सो मुझे फुली फंडेड स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप मिली कि मैं यूएस में जाऊं और वो फेलोशिप करूं। एंड सो ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो आपने कहा नोबेल प्राइज, देन डेफिनेटली नोबेल प्राइज, बिकॉज मुझे ये लगता है कि आने वाला टाइम इंडिया का टाइम है। हम डेफिनेटली सुपर पावर की ओर बढ़ रहे हैं, और एक कहीं ना कहीं अगर हम एक राइट पाथ पर गाइड करें अपने बच्चों को, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ एडुकेटर, तो नेक्स्ट नोबेल प्राइज हम लोग भी जीत सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नोबेल प्राइज इंडिया से नहीं ले सकते, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंडिया के अंदर वो कैपेबिलिटीज है जो दूसरी दूसरी कंट्रीज के किसी लोगों के पास वो कैपेबिलिटीज नहीं है। हम बहुत हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट लोग हैं। हम जब मार्स के ऊपर या चांद के ऊपर जा सकते हैं, तो हम इंडियंस कुछ भी कर सकते हैं। सो आई मीन, जो नेक्स्ट ईरा है वो इंडिया का ही ईरा है। और सभी पेरेंट्स को लास्ट में कहना चाहूंगा कि यू कैन गाइड योर स्टूडेंट्स, अपने चाइल्ड को गाइड कीजिए, उनको इंडिपेंडेंट रखिए, उनके ऊपर प्रेशर मत रखिए, और वो उनको गाइड कीजिए कि कुछ अलग करे लाइफ के अंदर, अपनी एक आइडेंटिटी बनाए लाइफ के अंदर, सो दैट कि पूरा वर्ल्ड उनको जान पाए, और जिससे आपको भी प्राइड होगा और देश को भी एक प्राइड महसूस होगा। थैंक यू। Great. Saurabh, it was really a nice conversation with you, and I must say that Mr. Saurabh Kaushal is certainly a story of determination, resilience, and fortitude. So, best wishes for your further endeavors also. Thank Thank you you very so much, much. ma'am, and thank you to all the organizers. Thank you very much. Yes. With this, I wind up today's show, and with a word that I'll be bringing you many more eminent personalities from different fields. Till then, stay safe.